जी नाज़रीन, कहते हैं कि औरत जो है ना घर की जीनत होती है, घर की इज्जत होती है, और मर्द जो होता है ना घर का रखवाला होता है। मेरे पीछे एक ऐसा गैंग मौजूद है जो कि यहाँ से लड़कियाँ अगवा करता है। कराची, सिंध के दूसरे इलाकों में, कच्चे के इलाकों में, रावलपिंडी, पेशावर तक लड़कियाँ सप्लाई करता है। कहीं जगह पे लड़कियों की शादी करवाता है, किसी जगह पे लड़कियाँ को 2 नंबर धंधा करवाता है, और किसी जगह पर लड़कियाँ बेचता है। हम मुल्ज़मान से बात करेंगे पहले मर्दों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। थाने में क्या लेने आए हो? सर अलीशा ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ। अलीशा कौन है? ਅਲੀਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ कहाँ से मिली थी? ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੇਵਨ। अच्छा, अल्ताफ लेके गया था कि तुम लेके गए? ਅਲਤਾਫ ਸਰ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। यानी अल्ताफ और तुम दोनों उस अलीशा लड़की को लेके सिंध गए थे? ਜੀ ਸਰ ਜੀ। इस जगह ते की लेने वास्ते आए हो? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਮਲਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆੜੀ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ। ਤੂੰ ਮਲਵਸ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜੀ ਮਲਵਸ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਲਤੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਕੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਰਾਬਤਾ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਠੀ ਖਾਨੇ। ਕੋਠੀ ਖਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਤ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ ਲੈ ਕੇ, ਨਦੀਮ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਸਿੰਧ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੱਸ ਤੇ ਭਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕੋ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਦੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਤੀਫਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਮਨ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੇਮਨ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਖਰੋਂ ਬਹਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ? ਮਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਸਰ तो फिर ये ज्यादती नहीं? ज्यादती है सर। इनकी शक्लें देखो, इनके करतूत देखो, इनके चेहरे देखो, शैतान नुमा ये चेहरे हैं। आप हालत देखो कि इनका हाल क्या है। इसकी वो बाजी बनी हुई थी, ये बेशर्म, ये जाहिल इंसान, ये शैतान सिफ्त इंसान जो है यहाँ से लड़कियां अगवा करवाता था, अल्ताफ के साथ वहाँ पे लेके जाता था। वहाँ पे सिंध वाली जो औरत है उसके पास जाते हैं। अभी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लतीफा। तो कहाँ की रहने वाली हो? सेवन की। सेवन सिंध की? जी। तो ये पंजाब में क्या लेने आई हो? पंजाब में पुलिस लेके आई है। पुलिस क्यों लेके आई है? बस गलत फहमी थी। गलत फहमी में? ये जो लड़कियां आपके घर से बरामद हुई हैं? नहीं बरामद हुई है मेरे घर से, कौन बोलता है? ये पुलिस वाले झूठ बोलते हैं? नहीं ये तो कल अल्लाह कहाँ से बरामद करके आए, हमारे को 15 दिन हुए हैं इधर। आपका ये जो नदीम है इसके साथ क्या ताल्लुक था? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेले पे आते थे, मैं मकान दिलवाती थी। तुम मेले में क्या करती थी? उधर मकान दिलवाती हूँ किराए पे। किराए पे सिर्फ मकान ही दिलवाती है? हाँ।
और कुछ नहीं? नहीं, शर्म है, जैसे बोलो सर। हया है? कितनी बेटी है तेरी? एक, अगर उसको कोई अगवा करके ले जाए तो क्या होगा तेरा हाल? घर से निकलेगी तो जाएगी ना। इसका मतलब ये घर से निकली है, अगर ये इसने गलती की है तो तूने आगे कितने में बेची थी? मैंने बेची ही नहीं, अल्लाह गवाह है। अच्छा, क्यों इनको इसको पनाह क्यों दी फिर? अल्ताफ तेरे घर गया, अल्ताफ का कहना है मैं और नदीम इस लतीफा के घर गए सिंध। मेरे घर आए ही नहीं है। वो झूठ बोल रहा है अल्ताफ भी, झूठ बोल। नदीम भी झूठ बोल रहा है। हाँ, कहाँ पे क्यों आई हो? यही लड़की गवाह के केस में आई हूँ। तो लड़की अगवा तूने कैसा जुल्म अपने आप के साथ क्यों किया? बस सज किया क्या तो तुम्हें शर्म नहीं आई? सज शर्म आती है तो फिर तुम औरत के नाम पे धब्बा नहीं हो? सच गलती मानती गलती हमारे से हो गई है। चलो, इससे पहले कितनी की हैं? इससे पहले हम सर बस एक ले गई थी, वो भी बाजी हमें घर पे बाजी के इसको ले जाओ घर। कौन सी बाजी? यही बाजी का, इसको घर ले जाओ। अच्छा, इसके पास तुम लेके गई थी 2 बच्चों वाली लड़की जो थी? हाँ जी, इस बाजी ने किसको इसको ले जाओ घर, मैं इसको नहीं रख सकती। तुम तो कहती है मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। मैं नहीं जानती हूँ सर। ये कहता है, इसका खामद भी कहता है, ये भी कहती है कि 2 बच्चों की माँ को इसके पास लेके गए थे तो इसने कहा ये नहीं चलेगी, इसको वापस ले जाओ। नहीं, झूठ बोलते हैं। आप इधर क्यों आई हो? मुझे इस बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया कि जो अलीशा बच्ची है ना कि मेरे घर पे लेके आए हैं, हालांकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। आप अलीशा से भी पूछ सकते हैं इस बात। अगर अलीशा तुम्हारे पास आ गई थी कि मैं घर से भाग के आई हूँ, अगर तुम उसके घर उसको पहुंचा देती तो तुम्हें हो सकता था घर वाले पैसे ही दे देते, कुछ इनाम दे देते। बस सर बंदा मारता था, ये दोनों मिल जाते थे। कई दफ़ा इसने मुझे मारा भी है, कई लड़कियों को मैंने भगा भी दिया था। ये बीवी जो साथ तेरे खड़ी, इसको क्यों फंसवाया? इसको मेरा मियाँ पकड़वा के लाया था। अच्छा, तुम्हारी नजर में इसका कोई गुनाह है? नहीं सर। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त महकमा पुलिस का वो दबंग अफसर मौजूद है जिसने इस गैंग को पकड़ा। कितनी मुश्किलात आपको पेश आई बरामद कराने में? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे को मैंने पकड़ा है, जिस सिम पे भी हमने काम किया है, स्टोरी आगे से आगे चली गई है। ये करता है, वो करता है, ये सारा गैंग हमने गिरफ्तार किया है। फिर नदीम हमने बड़ी मुश्किल से एक हमने बच्ची तैयार की अपनी लेडी कांस्टेबल यरम का, हमने लतीफ़ा बीबी से रब्ता करवाया कि एक बच्ची नहीं मिल गई है, इसको हम वो आपके पास देना चाहते हैं। उससे फिर हमने नदीम को पकड़ा, फिर ये सरवर और नसरीन बीबी को हमने पकड़ा। फिर नसरीन बीबी ने बताया कि मैं 3 दिन पहले ही एक बच्ची उधर दे के आई हूँ। तो फिर इस तरह 2 टीमें, जिस तरह इनकी SOP होती है, 2 टीमें हमने तश्कील दी। फिर हम सिंध चले गए लतीफ़ा बीबी के पास। अब इधर से और ज़्यादा मुश्किल शुरू होती हैं। जब हमने वो ऑपरेशन करके लतीफ़ा बीबी को गिरफ्तार किया तो फिर हमारे रूंगटे खड़े हो गए कि इतने ज़्यादा, ये कुछ 6 साल से जब उसके हमने डाटे निकलवाए तो बहुत ज़्यादा काज इनकी थी। कुछ 6 साल से, कुछ 4 साल से ये काम कर रहा था। तो लतीफ़ा बीबी को याद ही नहीं आ रहा था कि ये बच्ची बेसिकली हमने फ़रोख्त कहाँ पे की है। फिर वो जो उसके आगे सब डीलर थे जो उससे राब्ते में थे, फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर उधर वर्क शुरू किया। SHO फैक्ट्री है शाद रफीक साहब, DSP फिरोज़ाला, नवाज सैयद साहब और सबसे बढ़ के DPO शेखपुरा ज़ाहर नवाज मरवत साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली इस मामले में। और सिंध में जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी, जिधर भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उस DPO को फ़ोन किया। नाज़रीन, हमारे साथ वो बच्ची अलीशा मौजूद है जिसको दाता दरबार से वर्गला के बातों में लगा के अगवा किया गया और सिंध ले जाया गया। सारी बात उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था कि आप सिंध पहुंच गए? मैं रश्क तजारी थी, उधर से लेके गए ने बड़ी गाड़ी में बिठा के सिंध में ले गए, कच्चे इलाके में। ठीक है, उन्होंने उधर रखा कमरे में जाके, उन्होंने रोटी खिलाई मुझे। कहते नहीं इधर से पार्लर है, इधर ऐसे काम करी, शाम नू अपने घर, सुबह अपने आज ही रात को अपने घर चल जी करी, ऐसे किया। फिर उधर से उन्होंने जुल्म किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, अंदर से उन्होंने कुंडी लगा के दोनों ने लड़कियों ने मेरे साथ गलत काम किया। इतना किया, जुल्म बहुत किया उन्होंने मेरे साथ। लतीफ़ा जो सिंध की रहने वाली है, ये वहाँ पे मौजूद थी? हाँ जी, ये मौजूद थी। इसके पास तो छोड़ के आए हैं, जिसने मुझे आगे बेचा, इसने बेचा आगे 3 लाख में मुझे। 3 लाख में आगे बेच दिया? हाँ जी। तो जिसको बेचा फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी जुल्म किया, पहले इसने किया, फिर इसने आगे बेच दिया।
फिर उन्होंने भी जुल्म यही गंदा बहुत किया, मैं क्या कर सकती हूँ। जी नाज़रीन, आपने जिस तरह के सुना है, और ये पुलिस का फ़र्ज़ भी है कि पुलिस का है काम खिदमत आवाम की, लेकिन ये DPO शेखुपुरा ने बिल्कुल सच कर दिखाया कि यहाँ से अगवा होने वाली बच्ची को सिंध से बाजियाब करा लिया। ये DPO साहब से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात हुई और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। जी सर बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। आपने ख़ुद कहा बच्चे सब के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और सबको अजीज़ होते हैं। बच्चे हमारे भी हैं, आपके हैं, ये हम सब के बच्चे हैं। ये जो बच्ची की कॉल रिसीव हुई थी, पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जब तफ्तीश शुरू की, इसमें जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि कोई इसका क्लू नहीं था, कोई ह्यूमन टेक्निकल असिस्टेंस हमें नहीं मिली, कोई CCTV रिकॉर्ड, कोई जियो फेंसिंग, नथिंग लाइक दैट। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा इस पे फोकस किया। हमने जो गैंग अरेस्ट किया वो 7 मेंबर्स गैंग है। ये जो गैंग है ये मुख्तलिफ़ बच्चियों को मुख्तलिफ़ इलाकों से उठाती हैं और फिर आगे मुख्तलिफ़ लोगों को ये सेल आउट करते हैं। ये जो बच्ची रिकवर हुई है ये सिंध के इलाके कच्चा से रिकवर हुई है और इसमें पुलिस ने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स किए, मुख्तलिफ़ लोगों को इंटरोगेशन किया। इसमें आला अदलिया ने भी नोटिस लिया था। अल्लाह के फजल से आज ये बच्ची उनके साथ है और अपने घर में महफूज हाथों में है। ये जो बच्ची अगवा हुई थी बेसिकली ये प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए हुई थी कि इनको सेल आउट करके और इस तरह प्रोस्टिट्यूशन डांस में इनको रखा गया था। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस पर कमेंट भी करें और हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम मज़ीद आपको इसी तरह की स्टोरी आपको ला के दिखाते रहेंगे और हक़ाइक़ सामने लाते रहेंगे।